Okay, today we are going to talk about the Avogadro's number. Here we know that atom is made up of three different types of particles. Atom is made up of three different types of particles like proton, neutron and electron. The proton and neutron are present in the center of atom and electron are revolved around the nucleus. And proton carries positive charge, electron is the carries negative charge and neutron is chargeless. And we know that these different types of particles exhibit atomic mass to the substance. Atomic mass to the substance. This atomic mass is also called as gram molecular atomic mass. It is also called as gram atomic mass. First of all, we have to find out the gram atomic mass of various substances. Gram atomic mass of various substances. Okay. Here we have seen already the mass of proton, neutron and electron. First of all, we have to discuss the mass of proton, neutron and electron. We know that the mass of one proton, mass of one neutron and mass of one electron. Mass of proton is 1.673 into 10 raised to power minus 24 gram. The mass of neutron is 1.675 into 10 to the power minus 24 gram. The mass of proton and mass of neutron are comparatively same. And the mass of one electron is 9.11 into 10 to the power minus 27 gram. If we convert these values gram to kilogram, it will be found that it is 1.673 into 10 to the power minus 27 kg. Here 1.67375 into 10 to the power minus 27 kg. Here 9.11 into 10 to the power minus 31 kg. This is the masses of particles. These are the different types of particles that containing different types of mass into the gram and kilogram. Then we have to find out. We know that first of all, after this we have to learn about what is the purpose of Avogadro's number. What is the purpose behind the Avogadro's number? We know that here the 1 kilogram is equal to the 1000 ग्राम. हमको पता है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं. 1 डजन के बारे में बात करेंगे तो 1 डजन में 12 नंबर ऑफ एटम्स होंगे. 12 नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स. ओके. अगर 1 ग्रॉस की बात करेंगे तो इसमें आएगा 144 बुक्स. ओके. These are the different units which explain the number of atoms in that particular values. उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे ये हमको बताता है. लेकिन हमने अगर हर एक सपोज वी हैव टू टेक एग्जांपल ऑफ दाल्स. ओके. तुर दाल, मसूर दाल, अलग अलग टाइप के हमने दाल ली. ओके. तो 1 किलोग्राम में हर दाल का जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, वो कैसे मिलेंगे हमको? डिफरेंट मिलेंगे. कैसे मिलेंगे? डिफरेंट. यहाँ पे अगर हमने 1 किलोग्राम का वेट ले लिया तो वेट जो रहेगा 1 किलोग्राम का वेट, ये क्या रहेगा? रेफरेंस रहेगा. इट इज द रेफरेंस. अब इस रेफरेंस के हिसाब से हम क्या करते हैं कि जो दूसरी ग्रोसरी हम ले रहे हैं, राइस ले रहे हैं, बराबर है, शुगर ले रहे हैं, तो शुगर आणि राईसचं
आपण कंपॅरेटिव्हली कोणासोबत करताय 1 किलोग्रामच्या वेटवर. ओके, वी ॲड शुगर इन टू द पॅन अप टू व्हेन द बोथ बैलेंस डज नॉट कंटेन इक्वल, सॉरी यहाँ पे कैसा होगा, दोनों का बैलेंस जब तक सेम नहीं होगा तब तक आपको शुगर और राइस उसमें ऐड करना पड़ेगा. बराबर है. जब तक आपको यहाँ पे दोनों का बैलेंस सेम नहीं होगा तब तक आप उसमें शुगर ऐड करते रहोगे. और शुगर जब मिलेंगे हमको, जब बैलेंस हो जाएगा तब हम कहेंगे कि 1 किलोग्राम में हमको 1 किलोग्राम जितनी राइस और शुगर मिल गया. लेकिन जब केमिस्ट्री के बारे में हम सबटल्स को पढ़ते हैं तो दीज आर द वेट्स आर नॉट यूजेबल और द मेजरिंग द अमाउंट ऑफ मास, अमाउंट ऑफ सबटल्स. ओके, so that we have to use the proper technique, and this technique are explained by the chemistry to learn or to measure the amount of substance in given by using the Avogadro's number. By using the Avogadro's number, first of all we have to know the atomic masses. First of all we have to know the how this atomic masses is calculated. Okay, then we know that the atomic mass of one carbon atom, atomic mass of one carbon atom is equal to one, यहाँ पे one carbon atom, एक कार्बन आइटम का हमको मास मिलता है. Here 6 proton is present and plus 6 neutron is present in कार्बन आइटम. ओके, कार्बन में 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है. After calculation we get the 12. This is the unit, atomic mass unit, which is given by the Dalton. Atomic mass unit. Here the atomic mass of one carbon atom is equal to 12 atomic mass unit. अगर आप दूसरे भी सिंबल इसको डाल्टन से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और U से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. U is the unified atomic mass. Okay, recently we use the unified atomic mass than the atomic mass unit. Okay, recently we use the unified atomic mass than the atomic mass unit. Now one atomic mass of one carbon atom is equal to 12 m. Then 1 m is equal to what? We have to calculate the 1 m. जैसे कि हम कहते हैं कि यहाँ पे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम. ओके, तो 1 m में कितने आएंगे ये हमको निकालना है. हमको निकालना है, ये कैलकुलेट करना है, विच इज इक्वल टू 1/12 of the that is the carbon atom. 1/12 of the one carbon atom, mass of one carbon, mass of one carbon atom of carbon 12 isotope. Carbon 12 isotope. आइसोटोप कौन सा लिया हमने? कार्बन. व्हाट इज आइसोटोप्स? आइसोटोप्स आर द एलिमेंट्स व्हिच आर सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर. अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया है कि 1 m is equal to 1/12 of the mass of one carbon atom. अब यहाँ पे हमने कार्बन ही क्यों चूज किया? देयर आर अबाउट 118 एलिमेंट्स. ओके, अब यहीं से स्टार्ट होगा. आइगोड्रो नंबर तो हमको यहीं से स्टार्ट करना है. कितने हैं? क्या बताया था अभी? 1 m is equal to 1/12 of the mass of one carbon. अब हमने कार्बन ही क्यों चूज किया? हाइड्रोजन क्यों नहीं किया? ऑक्सीजन क्यों नहीं किया? देयर आर अबाउट 118 एलिमेंट्स. वन बता सकते हैं? ओके, दैट मीन्स फर्स्ट इज रीजन द अबंडेंस. जब ये यूनिट हम ले रहे थे तब हमको पता नहीं था कि कार्बन के भी आइसोटोप्स होंगे. कार्बन 12 होता है, कार्बन 13 होता है, कार्बन 14 भी होता है. देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ कार्बन. कार्बन 6 कार्बन 13, कार्बन 14. these are the isotopes of कार्बन. जब हम निकाल रहे थे इसके बारे में हमको पता नहीं था. लेकिन कार्बन का जो अबंडेंस है विथ कंपैरेटिवली विथ अदर एलिमेंट्स ये बहुत ज़्यादा है. ओके, इसकी प्रेजेंट ही बहुत ज़्यादा है. क्लास में प्रेजेंट कैसी इसकी ज़्यादा. कैप्टन हम जब चूज़ करते हैं, हमने बताया था अगर कैप्टन चूज़ करेंगे तो क्या होगा? किसको चूज़ करेंगे? जो रेगुलर आता है.
क्लास में जो रेगुलर होता है, रोज प्रेजेंट रहता है, ओके, उसको हम एज अ कैप्टन चूज करते हैं। किसी को भी चूज करेंगे क्या जो रेगुलर नहीं रहेगा, ओके, सो दैट वी हैव टू यूज कैप्टन फॉर द स्टूडेंट विच इज रेगुलर इन द क्लास, सो दैट कार्बन इज वेरी रेगुलर एलिमेंट, ओके, द abundance of carbon is very high, okay. Second one is the it must be moderately reactive. इसकी रिएक्टिविटी कैसे होनी चाहिए? इट मस्ट बी मॉडरेटली रिएक्टिव। रिएक्टिविटी एक तो ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। अगर कैप्टन ज़्यादा ये होगा, डेंजर होगा थोड़ा सा, तो क्या होगा, वो क्लास को संभाल नहीं पाएगा। अगर बहुत शांत रहा तो भी संभाल नहीं पाएगा। यानी कि कैप्टन कैसा होना चाहिए हमको? मॉडरेटली रिएक्टिव, ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, मॉडरेटली, ओके। सो दैट कार्बन इज मॉडरेटली रिएक्टिव, ये ज़्यादा रिएक्टिव भी नहीं है और कम रिएक्टिव भी नहीं है, ओके। सो दैट abundance is high and moderately reactive, so that we choose the carbon atom here as a comparatively reference with measuring the mass of another cells or another atoms, okay. अब यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया हमने मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के यूज से, हमने मास ऑफ वन कार्बन निकाल दिया। किसके वजह से? मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। देयर आर वेरियस टेक्निक्स टू यूज द मेजरिंग द मास ऑफ एटम्स, ओके। और टेक्निकल हो गया, इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से हमने निकाल दिया। पर यहाँ पे हमको कार्बन का मास टेक्निकली जो निकाला है, कैलकुलेटेड है विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इट इज इक्वल टू द, यहाँ पे कितना था, 112, यहाँ पे कितना है, 112, यहाँ पे कितना है, 1.99 इंटू 1.99 इंटू 10 to the power minus 23, it is the atomic mass. 1 m is equal to what? 112 into 1.99 into 10 to the power minus 23. Okay. After calculation we get 1.66054 into 10 to the power minus 24 gram. ये कितना आ गया? 1.66054 into 10 to the power minus 24. Okay. This is इक्वल टू 1 किलोग्राम यानी कितना होता है? 1000 ग्राम। तो 1 एम यानी कितना होता है? 1.66। इसको किसी बुक में 1.667 दे दिया, 667 भी दिया है, तो ये एडजस्टेबल है, उतना पॉइंट्स हम कम ज़्यादा कर सकते। 1.667 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 और 1.66 इंटू 0.054 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 किलोग्राम में इसमें आता है, यानी कि 1 एम यानी इतना होगा। इतना समझ में आया? 1 एम यानी इतना होता है, ओके। अब इसका हम कंपेयर करेंगे एलिमेंट के साथ। इसका कंपेयर किसके साथ करेंगे? हम एलिमेंट के साथ। एवोगाड्रो नंबर अभी तक नहीं आया, पहले हम एटॉमिक मास देखेंगे कि किस एटम का कैसा एटॉमिक मास हमने चूज किया, ओके। अब उसके बाद हम बताएंगे, सपोज देयर आर सेवरल, वी हैव टू टेक द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ दिस एटॉमिक मास में का यूनिफाइड एटॉमिक मास। यहाँ पे अगर हमने ये दिया, कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, वन एटम ऑफ कार्बन, ओके, इसका मास निकालना है। तो हमको क्या पता है कि कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, तो एटॉमिक मास कितना आया था? 12 आया था, बराबर है। तो 12 इंटू यहाँ पे कितना है, 1 एम यानी क्या, 1.66054 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24, इट इज इक्वल टू 1 एम, इट इज इक्वल टू 1 एम आएगा, दैट इज 1.667 लेते हैं, ठीक है, 667 लिया तो भी चलेगा, 667 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24, ओके। अब यहाँ पे इसका जो वेट है, एक 1 एम कितना है, 1, यानी कि 12 इंटू कितना होगा, इंटू 1 इज इक्वल टू कितना आएगा, कितना आएगा, 12। ये आर्बिट्रली फिक्स किया हमने, रेफरेंस ऐसे यूज किया उसको, 1 एम कितना किया, 1 एम। अगर हमने ऐसा बोला मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, मास ऑफ 1 एटम, अब यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं, मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तीसरा एग्जाम्पल, मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम।
हर एक का मास हमको कितना मिलेगा, आर्बिट्रेरीली फिक्स मिलेगा। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे, उतना हमको उसका मास मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे जो 1 AMU है वो कितना है, 1.66, वो तो एज अ 1 AMU से कंसिडर करेंगे। तो यानी कि यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे एटम का मास बोला, किसका बोला है, N2 इज द मॉलिक्यूल, N2 इज द मॉलिक्यूल। ओके, यहाँ पे 1 एटम का पूछा है, किसका पूछा है, 1 एटम का। तो 1 एटम का कितना आएगा, यहाँ पे 14 आएगा, कितना आएगा, 1 एटम का हमको 14, यहाँ पे मॉलिक्यूल दिया है। मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, तो 14 into 1 हो जाएगा, तो कितना आएगा, 14 आएगा। मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना आएगा, 16 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करना है यार, इट इज फिक्स एज 1। ओके, यहाँ पे कितना आएगा, 20, यहाँ पे कितना आएगा, 23। ओके, अब दीज आर द एग्जांपल्स। हमने इसका मास फिक्स कर दिया है, 1 एटॉमिक मास में 1 एटम, कितना एटम का, 1 एटम। अब उसके आगे देखेंगे कि 1 एटम ऑफ जो कार्बन का हमने बताया कितना है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 एटॉमिक मास यूनिट, कितना बताया, 12 एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि ए में बन गया। ओके, अब आएगा एवोगैड्रोस नंबर। अब स्टार्ट करेंगे एवोगैड्रोस नंबर, यानी कि आप सपोज मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन था, तो मास ऑफ Na is the symbol for Avogadro's. Avogadro's number is symbolized by capital N, capital A at the bottom, apostrophe A. Okay, sorry, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, N कैपिटल लिखना पड़ेगा, A बॉटम में लिखना पड़ेगा, O भी कैपिटल। ओके, it is symbol of Avogadro. That is the mass of Na number. Na, it is the number. Okay, not unit, it is the number. Na atom of carbon, मास ऑफ Na एटम ऑफ कार्बन, दिस इज इक्वल टू 12 AMU, कितना है, 12 AMU, बराबर है। तो उसको हमने कन्वर्ट कर दिया, तो कितना आएगा, 12 into Na into U इज द सिंबल। अब AMU की जगह हम क्या यूज करेंगे, यूनिफाइड एटॉमिक मास। ओके, AMU भी बोल सकते हैं, DA भी बोल सकते हैं, आप U भी बोल सकते हैं। आप आगे चल के आप U बोलेंगे, AMU हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। According to the IPC, we have to take unified atomic mass, okay, in a recent years. अब यहाँ पे कितना आएगा, 12 into Na into U, okay, इतना समझना है। And Na is the Avogadro's number, Na is the Avogadro's number, इतना समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह से भी बता सकते हैं हम, Na इज इक्वल टू 1 मोल, 1 इज इक्वल टू 1 मोल होता है, कितना होता है। अब आएंगे मोल पे, कहाँ पे आ गए, 1 मोल, 1 Na इज इक्वल टू 1 मोल, कितना हो गया, 1 Na इज इक्वल टू 1 मोल। तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पे 12 ग्राम आएगा, कितना आएगा, 12 ग्राम। तो वाई 12 ग्राम, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मोल, फ्रॉम द, यहाँ पे लिख सकते हैं, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ मोल। व्हाट इज मोल, मोल इज द नंबर exactly equal to the mass of 12 gram of carbon atom, 12 gram of carbon atom having isotope carbon 12, having isotope carbon 12 का जोड़ा जितना कार्बन 12 लिया है, किसका लिया आइसोटोप हमने। अब कार्बन 12 के बारे में बात करेंगे, दूसरा आइसोटोप हम आपके कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि 1 mole is the number of atoms. 1 mole is the number of atoms which is exactly equal to the 12 gram of carbon. 12 gram of carbon. So that here we have to write down the 12 gram. Mole is the number of atom. Mole is the number. Exactly. Mole is the number. यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, कोई कंफ्यूज हो जाएगा। Mole is the number
Okay, mole is the number which is exactly equal to the mass of 12 gram of carbon according to the mole. अब यहाँ पे आ गया मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम ऑफ कार्बन। अब यहाँ पे किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं? मास ऑफ 1 मोल बोला, कैसा बोला है? 1 मोल एंड विच इज इक्वल टू 12 Na इंटू यू है एंड इज इक्वल टू कितना आ गया? 12 ग्राम आ गया। कितना है? 12 ग्राम। अब ये 12 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 12 और ये 12 क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे बच गया Na इंटू U is equal to gram. Then U is equal to what? Gram upon Na. This is the simplification. कितना है? ग्राम अपॉन Na. तो ये कितना आएगा? ये कितना आएगा? U is equal to 1 upon 6.022 into 10 to the power 23. यहाँ पे ग्राम। It is the number. Na is the number. कितना नंबर है? 6.022 into 10 to the power 23 ग्राम। ओके, अब यहाँ पे इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। U is equal to what? U is equal to what? 1 upon mole ग्राम, which is equal to ऐसे भी लिख सकते हैं। U is equal to 1 ग्राम upon mole। आ गया? यहाँ से फिर से देखो, हमने क्या कर दिया? मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम अकॉर्डिंग टू द मोलर डेफिनेशन। मोल की डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिख दी है। व्हाट इज 1 मोल? 1 मोल इज द नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली इक्वल टू द मास ऑफ 12 ग्राम ऑफ कार्बन। सो दैट वी पुट द 12 ग्राम 12 get cancel with each other. Then Na into U is equal to what? Gram. Then U is equal to gram upon Na. Then U is equal to, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, Avogadro number। यहाँ पर आप क्या आ गया? It is the Avogadro number. It gives the information about the number of molecules, number of atoms in a 1 mole. अरे आर्बिट्ररी सबके लिए कैसा रहेगा? फिक्स रहेगा। आर्बिट्ररी सबके लिए कैसा रहेगा? फिक्स रहेगा। तो U is equal to what? 1 upon mole, which is equal to gram upon mole। इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। अब अगर आपने इसको कैलकुलेट कर दिया 1 upon 6.022 into 10 to the power 23, तो ये कितना आएगा? 1.667 into 10 to the power -24 आएगा। कितना आएगा? ग्राम में आएगा। किसमें आएगा? ये ग्राम में है ना? कितना आएगा? ग्राम में। तो ये क्या हो गया? देखो 1 m is equal to कितना है? 1। इतना ही आंसर आता है। 1.6677 बोला है, नहीं तो 66 बोलो, कुछ भी बोलो, ये बोलो नहीं तो ये बोलो, कौन सा बोलना है आप डिसाइड करो। कौन सा बोलना है? 1.667 बोलेंगे, ठीक है? इतना बड़ा बोलने का काम नहीं, ये समझ लो आप, ठीक है? तो कितना ये आंसर और ये आंसर सेम आ गया। 1 m is equal to 1.667 into 10 to the power -22। इस हिसाब से भी हम निकाल सकते हैं। समझ में आ गया क्या आपको? सिंपल है। अब इसके बाद है, ज्यादा समझ में आएगा। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे Avogadro नंबर ऑफ 1 मोल की। अभी हमने यहाँ पे निकाल लिया। अगर हमको 12 ग्राम ऑफ कार्बन में निकालना है, कितने? नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन में, 12 ग्राम ऑफ कार्बन में ये कितना आएगा? 12 अपॉन 6.022 into 10 to the power 23। ओके ग्राम। अब यहाँ पे कितना आएगा? 1.99 into 10 to the power -23। कितना आएगा? -23। ओके, ये किसका मास आएगा? 1 एटम ऑफ कार्बन का। कितना किसका है ना? मिसर ले लेना। 1 ग्राम ऑफ कार्बन का एटम का वेट आएगा। ओके, तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा। चलो आगे चलता हूँ मैं। यहाँ पे आपका कुछ रहेगा तो भी चलेगा, डायरेक्ट Avogadro में नंबर पे आता है। यहाँ आगे चले गए हम लोग, बोलते बोलते बहुत ही आगे चले गए।
हमको खाली एवोगाड्रो नंबर बताना है। तो ये एवोगाड्रो नंबर कहाँ से आया ये भी तो पता होना चाहिए, ठीक है, इसलिए बता दिया। अब यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू ओके वेट ऑफ सब्सटेंस, वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन मोलर मास, क्या होगा मोलर मास, ओके यहाँ पे क्या होगा मोलर मास होगा, ओके। अगर दूसरा मॉलिक्यूल रहा तो क्या होगा मॉलिक्यूलर मास होगा, क्या होगा मॉलिक्यूलर मास। उसका आपका एवरेज सबका कैलकुलेशन करने के बाद जो मॉलिक्यूल का वेट आएगा वो वेट आपको यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन मोलर मास, अपॉन मोलर मास। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, वेट ऑफ सब्सटेंस अगर निकालना होगा तो वेट ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू इन ग्राम, यहाँ पे इन ग्राम में, तो यहाँ पे क्या होगा नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल्स इनटू क्या होगा मोलर मास, क्या होगा मोलर मास। जब आपको वेट ऑफ सब्सटेंस निकालना है तब आपको क्या करना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ सब्सटेंस इन अ ग्राम अपॉन मोलर मास, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास लेना पड़ेगा। एंड वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम इज इक्वल टू, अगर वेट निकालना होगा, अगर वेट नहीं पता हमको मोल पता है कि कितने मोल दिए और मोलर मास पता है तो हम उसमें से उसका वेट निकाल सकते हैं। वेट ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, ओके। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना पड़ेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, दैट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम, और क्या होगा एटम इन गिवन सब्सटेंस, इन गिवन सब्सटेंस में हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, ओके कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो यहां से हम निकाल सकते हैं। हमको पता है कि हमको क्या मालूम होना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इनटू क्या होगा अभी जो हमने बताया था एवोगाड्रोस नंबर, क्या होगा एवोगाड्रोस नंबर Na की वैल्यू, और Na की वैल्यू हमको पता है, नंबर ऑफ मोल तो पता चल गया, नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगाड्रोस 6.022 into 10 to the power 23. This is the Avogadro's number. This one is the Avogadro's number. That is first of all we have to know the formulas. Okay, which formula are used for the calculation of different quantity. Okay, number of moles निकालना होगा तो weight of substance in gram upon molar mass. weight of substance in gram निकालना है, हमको पता नहीं कि कितना वेट दिया है, खाली मोल में बताया है और उसका मोलर मास हमको पता है। ओके, ये तो हमको अब जो प्रॉब्लम्स है उस पे से हम डिस्कस कर सकते हैं। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एटम निकालना है, इन एटम का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे गिवन सब्सटेंस में, वो किसे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na, दैट इज नंबर ऑफ मोल इनटू 6.022 into 10 to the power 23। ओके, अगर मैंने एग्जांपल दे दिया, ओके, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ, कितना बोला सॉरी 18 ग्राम बोला, 18 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। ओके, फाइंड द, यहाँ पे पहला एग्जांपल ले लो, नोटबुक है क्या, फाइंड आउट द number of molecules in 18 gram of water। find out the number of molecules, ये निकालना है, number of molecules in 18 gram of water। so दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। ओके, अब बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे इस पे, फाइंड आउट द, ये बहुत एग्जाम में पूछते हैं इसके बारे में, और जो पहले मैंने दिया है 1.667 वाला, उसके बारे में बहुत सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे पूछे जाएंगे। फाइंड आउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन
18 ग्राम ऑफ वाटर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो द नंबर ऑफ मोल्स। हमको पता क्या होना चाहिए पहले, नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए हमको फार्मूला कौन सा पता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू 6.00 इनटू 10 टू द पावर 23 निकाला है क्या। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू व्हाट, वेट ऑफ substance in ग्राम अपॉन मोलर मास दिया, तो वेट ऑफ सब्सटेंस कितना है 18 ग्राम है, कितना है मोलर मास कितना है वाटर, उसका कितना है 18, दैट इज द 2 हाइड्रोजन्स आर वाटर कंटेंट 2 हाइड्रोजन्स एंड 1 ऑक्सीजन। वी नो दैट 2 हाइड्रोजन्स आर एटॉमिक मास 2, 1 हाइड्रोजन कंटेंट 1 एटॉमिक मास। ओके, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2, देन ऑक्सीजन है 16, देन 16 प्लस 2 इज इक्वल टू 18। तो यहाँ पे मोलर मास जो किसकी ऑक्सीजन का सॉरी वाटर का कितना हो गया 18, देन डिवाइडेड बाय 18 इट इज द मोलर मास। ओके, देन ये आएगा ग्राम पर मोल में, ये क्या आएगा यहाँ पे कितना आ गया 1 ग्राम पर मोल का है, कितना आएगा 1 आ गया, 1 मोल आ गया। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू द, ये क्या ग्राम नहीं था ना, ग्राम कैंसिल हो गया, ये भी ग्राम नहीं था, ग्राम क्या हो गया कैंसिल, और कितना बच गया 1 मोल बच गया, कितना बच गया 1 मोल। अब 1 मोल का क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल, वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स in 18 ग्राम ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 18 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू कितना होगा, मैंने क्या फार्मूला बताया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 18 ग्राम ऑफ वाटर, तो कितना होगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू अवोगाड्रो नंबर, दैट इज द Na। अब Na की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे एक एग्जांपल बता ही देता हूँ पूरा। 1 इंटू कितना आएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 विच इज इक्वल टू कितनी मॉलिक्यूल्स है मींस 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। ओके, लेट अस फाइंड आउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। एग्जांपल करो, बाकी के एग्जांपल हम कल देखेंगे। एक एग्जांपल आप करके देखो, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। अगर हमको कितना वाटर दिया है अभी 36 ग्राम ऑफ वाटर, कितना है 36 ग्राम ऑफ वाटर है, तो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है इन 36 ग्राम ऑफ वाटर में कितने होंगे। कितने हो गए निकालो, आंसर आप भेज भी सकते हो। कितना होगा, यहाँ पे वेट ऑफ सब्सटेंस कितना दिया है 36 डिवाइडेड बाय 18, यहाँ पे कितना आ गया 2 मोल आ गया, कितना मोल आ गया 2 मोल। देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स in 36 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इंटू Na, कितना होगा Na, देन विच इज इक्वल टू 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, कितना आएगा कितना 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23। ओके, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसमें प्रेजेंट है, कितने 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23। अगर मैंने यहाँ पे 64 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिया, we have to find out the number of molecules in 64 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये निकालो, बाकी काम कल देखेंगे। एग्जाम्पल आप कर लो अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।
molecular mass of carbon dioxide. Find out the number of molecules in 64 gram of carbon dioxide. 64 है. ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड इतना आ गया. एक काम करो, इसको घर से करके लाओ एज होमवर्क, ठीक है? मैं कल चेकआउट